الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. نہایت قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ عظیم الشان اور پربہار پروگرام جو ایک روزہ عظیم الشان تقریب اجرا کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، شاید یہ نام آپ کے لیے نیا ہو اور پہلی بار آپ یہ سن رہے ہو۔ اشتہار آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں تقریب اجرا لکھا ہوگا۔ اس سے پہلے اشتہارات میں آپ دیکھتے ہوں گے جلسہ سیرت النبی یا جلسہ اصلاح معاشرہ لکھا ہوا ہوتا ہے یا دیگر اور کوئی عنوان لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ ایک نیا عنوان اور اپنی نوعیت کی منفرد مجلس کے تحت ایک اہم پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ شاید کہ ضلع اناؤ کی تاریخ میں اس سے پہلے کتابوں کے اجرا کے تعلق سے پروگرامات کبھی منعقد نہیں ہوئے۔ الحمدللہ میرے حصے میں یہ سعادت آئی ہے اور مجھے بے پناہ مسرت ہے، بے پناہ خوشی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہ اس کام کے تعلق سے میرا انتخاب کیا اور سب سے پہلے ہم نے اپنی کتاب جو ایک مختصر سا رسالہ تھا، جو 20 صفحات کا رسالہ تھا، ضلع اناؤ کے معروف عالم دین تھے، کھیورئی کے رہنے والے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ، سن 2018 میں ہم نے اس کتاب اس رسالے کا اجرا کیا تھا اس وقت، اور دیگر علماء اکرام موجود تھے۔ اس سفر کا وہ آغاز تھا، پہلا سفر تھا اس کتاب کا اجرا کا۔ الحمدللہ رفتہ رفتہ اس کے بعد یکے بعد دیگر کتابوں کے اجراءات ہوتے رہے۔ ایک مرحلہ وہ آیا کہ ایک عظیم کتاب اس ادارے کے ناظم و محتمم حضرت مولانا علی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاکسار نے ان پر ایک کتاب مرتب کی تھی اور اس کا اجرا حضرت مولانا قاری سید عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک بعد دیگر کام ہوتا رہا۔ پھر ابھی نومبر 2024 میں کانپور کے نہایت معروف عالم دین تھے حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ، ان پر ہم نے ایک کتاب تیار کی تھی جس کا نام تھا نگارشات منظور، جو کم و بیش 350 صفحات میں شائع ہوئی تھی اور اس کی ایک شاندار تقریب اجرا قطرخنی میں منعقد ہوئی تھی۔ اس کی میزبانی وہاں کے علماء اکرام نے کی۔ الحمدللہ اس کے بعد یہ سفر آگے بڑھتا رہا اور ایک طویل منصوبہ تھا جو آج اللہ رب العزت نے اس کو پورا کیا۔ اس میں ہمارے بڑوں کی دعائیں، دوست احباب کی رہنمائی بھی شامل تھی، اور کیوں نہ ہوتی آج ہم سب کے مخدوم گرامی حضرت مولانا افضال الرحمان صاحب قاسمی دامت فیض العالیہ کی توجہات اور حضرت کی بے پناہ دعاؤں کا نتیجہ یہ رہا کہ آج وہ کتاب منظر عام پر آ رہی ہے۔ آج کا یہ دن ہمارے اور آپ کے لیے سعادت مندی کا دن ہے، اور کیوں نہ ہوتا اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دین کے کاموں کے لیے چنا، دین کے کاموں کا انتخاب ہمارے اور آپ کے لیے کیا۔ اس کا یہ فضل ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے نیک کام کے لیے منتخب کرتا ہے، ورنہ یہ دنیا بہت بڑی ہے، یہاں پر دنیا میں رہنے
रहने वाले आबादी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा लोगों की यहाँ पर वसीकत है, लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का इंतखाब करता है। अलगरज आज का ये अजीम प्रोग्राम जो तकरीब इजरा के उन्वान से मुनक़िद हो रहा है, इजरा के माना आते हैं जारी करने के, यानी कि एक किताब जो तैयार की गई है अब वो बिल्कुल मुकम्मल इशाअत के मरहले से गुजर कर आपके हाथों में इंशाअल्लाह पहुंचेगी। और वो किताब कुल्लियात हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह अहवाल और आसार और तालीमात और मलफूजात के उन्वान से मुरतब हुई है। ये जिम्मेदारी और ये तरतीब और तालीम का हिस्सा अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में रखा था, खुदा ताला ने उसको पूरा किया। उसमें बहुत से लोगों की दुआएं शामिल रहीं, असातिज़ा ने दुआएं दी, बड़ों ने तवज्जुहात की और दोस्तों ने रहनुमाई की। हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की जात और उनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, मगर हम और आप जहाँ तक जानते हैं, हम और आप उनकी एक मुतब्बी मिक़दार को कि हमारे यहाँ वो मौजूद है, उनकी कब्र है, लोग आते हैं उनसे फायदा उठाते हैं और उनकी कब्र के ऊपर फातिहा पढ़ते हैं, दो चार वाक़ियात हम और आप सुनते रहते हैं, लेकिन सही माना में उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी हैं और सही माना में उलमा इकराम ने जो उनसे रुजू किया और जो उनसे फायदा उठाया है, बहुत सी वो तालीमात और बहुत सी उनकी वो बातें जो अब तक मख्फी थी और सही बातों का इख्तिलाफ हमेशा रहा है, आज भी है, हमारे बड़ों ने किया भी है, लेकिन उसको दायरे में रहकर किया है। लेकिन इंसान जब दायरे से हटता है तो यकीनन खुदा ताला सही कामों का इंतखाब अपने बंदों में सही करता है। आज ये किताब जो हमारे और आपके सामने अभी इंशाअल्लाह अकाबिर उलमा इकराम के हाथों होगी, उस किताब का नाम कुल्लियात है। वो एक मजमुआ है, उसमें कई किताबें हैं, क्योंकि हजरत मौलाना की वफात कमो बेश 130 साल के करीब हो रहे हैं। उस बीच कितने उतार चढ़ाव आए थे। यहाँ गंज मुरादाबाद में 1932 का जमाना, जब उसकी हम और आप तारीख पढ़ेंगे तो मालूम होगा बड़े इनकलाबात उस वक्त आए थे और बहुत ज्यादा ऐसे इनकलाबात थे कि बहरहाल जब उनको हम और आप पढ़ते हैं, हमने तो उसको पढ़ा है, पढ़ने के बाद एहसास होता है कि कैसे कैसे लोग थे, हर तरह की मारके सर करने को उनके लिए आसान था। बहरहाल हजरत मौलाना की जात निहायत काबिले तारीफ, निहायत काबिले एतिमाद थी। हजरत मौलाना को जो मैदान था वो मैदान था इल्म हदीस का और इल्म कुरान का और लोगों की रहनुमाई करने का। हमने और आपने अब तक ये समझा कि मौलाना सिर्फ एक नेक आदमी थे, लोगों पर फूंक डालते थे, बल्कि नहीं, हजरत मौलाना का मैदान इल्म हदीस का था। वहाँ उलमा इकराम आते थे। एक जमाना वो था कि हजरत मौलाना की बाकायदा दरसगाह लगती थी और बाकायदा क्लास उनका होता था, मौलाना सबक पढ़ाते थे और जिस तरह आप यहाँ बैठे तलबा इकराम बैठे रहते थे। और औकात दर्स का निजाम ये था कि टाइम टेबल ये था कि कभी कुरान पाक की तफसीर आप करते थे, सुबह से लेकर के जोहर तक कभी आप कुरान पाक की तफसीर करते थे और जोहर से लेकर के असर तक कभी आप इल्म हदीस यानी बुखारी शरीफ के सबक पढ़ाते थे। इसी तरीके से जो लोग मुलाकात करने आते थे वो रात में क़याम भी करते थे और बहुत से लोग मुलाकात करके वापस भी चले जाते थे। उस वक्त हजरत मौलाना बर्रे सगीर के अंदर वो वाहिद शख्सियत थी जो सबसे ज्यादा करीबुल इस्नाद यानी हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमुल हिंद हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो उनके साहिबजादे गिरामी कद्र हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनसे बराह रास्त हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा है। ये खूबी जो आप सुने उसको कि हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से बराह रास्त पढ़ने की जो निस्बत और सआदत हजरत मौलाना को हासिल थी, हिंदुस्तान में उस वक्त आज से 100 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, उससे ज्यादा किसी की करीबी निस्बत नहीं मिलती थी। ये इम्तियाज अल्लाह ताला ने हमारे मुरादाबाद में हजरत मौलाना शाह फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह को अता किया था।
अलगरज वो इल्म हदीस पढ़ाते थे और इल्म हदीस में ऐसा गोताज़न हो जाते थे कि आपके ऊपर सुन्नत का इश्क तारी हो जाया करता था। आसीवन के हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, वो 6 महीने रह करके बाकायदा बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, सिहाह सित्ता का मुकम्मल सबक आपसे पढ़ा था। वो वाहिद शख्सियत थी कि जिनको मुकम्मल सियासत पढ़ने की सआदत हासिल हुई थी। अलगरज ये सिलसिला चलता रहा। एक जमाना वो आया कि हम सब के मखदूम गिरामी मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला लिखा जिसका नाम तज़किरा फ़ज़्ल रहमा है। वो तज़किरा फ़ज़्ल रहमा हर एक को मिल जाया करता है, छपा भी बहुत, और उस किताब के छपने के बाद लोगों को कुछ इश्कालात भी हुए, लोगों ने इश्कालात भी लिखे, लेकिन बहरहाल वो किताब छपती रही और इतनी मकबूल हुई कि यहाँ भी छपी, पड़ोस में भी छपी और उसके दीगर एडिशन भी छाए हुए। हजरत मौलाना ने अपने उस मुकद्दमे में ये बात लिखी है कि हजरत मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बहुत काम बाकी है जो करने का है, लेकिन बहरहाल वक्त नहीं इजाजत देता है। इस वजह से ये मुख्तसर से एक तारीफ हमने तैयार की है जो इंशाअल्लाह नाफे साबित होगी। हजरत मौलाना की ये बात निहायत कीमती और अपनी जगह मुसल्लम है, क्योंकि बहुत रसायल उस वक्त लिखे गए थे जो आपकी हयात में भी, आपकी जिंदगी में भी तैयार हुए थे, और बहुत से रिसाले आपकी जिंदगी के बाद भी छपे थे। हजरत मौलाना शाह फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर जो सबसे ज्यादा अहम काम किया था वो थे मदरसा मज़ाहिरुल सहारनपुर के एक फारिग तहसील थे हजरत मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब दसनवी रहमतुल्लाह अलैह, बिहार के रहने वाले थे। फजल रहमानी के उन्वान से उन्होंने 2 जिल्दों की किताब लिखी। एक जिल्द यहाँ हिंदुस्तान में दस्तयाब थी और उसकी दूसरी जिल्द नहीं मिलती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी हासिल की। उसके बाद एक नाम आता है हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह का, जो दारुल उलूम तर्बियतुल उलमा लखनऊ के बानी मबानी हैं। उन्होंने 3 किताबें लिखी, इरशाद रहमानी और फजल रहमानी, उसके बाद फयूज़ यज़दानी। उसके बाद सिलसिला चलता रहा। आप जानते हैं कि जितना ज्यादा अरसा गुजरता चला जाता है, पर्दे उसके ऊपर पड़ते चले जाते हैं, गर्द उसके ऊपर जमती चली जाती है और बहुत सी अहम बातें मख्फी हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ा खैर का फरमाए। बहुत से उलमा इकराम ने काम किया। उसके बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह पर एक काम किया जाए जो एक यकीन मुरादाबाद के नागरिक होने की हैसियत से मेरे ऊपर फर्ज भी है, काम भी करना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये सआदत अता की। उसके बाद हमने कांदला का सफर किया। कांदला के अजीम मुअर्रिख हैं इस वक्त हजरत मौलाना नूरुल हसन साहब राशिद कांदलवी के नाम से। अल्लाह ने उनको तारीख में बड़ा मौका अता किया है और अपने अकाबिर की बहुत कीमती मीरास को जमा किए हुए हैं और वक्तन फवक्तन वो मुस्तफीद करते भी रहते हैं। अलगरज उनसे मशवरा किया। मशवरा करने के बाद उन्होंने 2 मशवरे दिए। एक मशवरा ये दिया कि काम करने की 2 नौइयतें हैं। एक नौइयत तो ये है कि काम वो किया जाए कि कोई एक नई समाने मरतब की जाए तमाम किताबों को सामने रख करके, और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि जो पुरानी किताबें हैं उनकी सही तरीके से जांच की जाए और उनकी कंपोजिंग करके सही तरीके उसको शाये किया जाए। हमने कहा कि पहला काम क्योंकि लोगों ने किया है, दूसरा काम नहीं हुआ है, इस वजह से दूसरी बात का इंतखाब कर लेते हैं। कमोबेश 10 साल तक इस काम को हम अंजाम देने की कोशिश करते रहे और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ लाइब्रेरियों से फायदा उठाया। कहीं जा सके, कहीं नहीं जा सके, जहाँ जा सकते थे वहां तक पहुँचे, जहाँ नहीं जा सकते थे वहाँ इस वक्त सोशल मीडिया का फायदा हमने उठाया। उसके बाद ये काम होता रहा। क्योंकि आज मुझे और आप दोनों को बेपनाह मसरत है क्योंकि मुरादाबाद की सरजमीन पर ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके लिए बाइस मसरत है। उसके बाद फिर वो किताब हमने भेजी उलमा इकराम के पास। तमोबेश 1 साल तक वो किताब
दो आलिमों के पास रखी रही। एक हजरत मौलाना मुफ्ती अख्तर इमाम आदिल साहब कासमी दामत आलिया जो बिहार के रहने वाले हैं और किताबों पर उनकी बड़ी निगाह है। दूसरे हजरत मौलाना नूरुल हसन साहब राशिद कांदलवी दामत आलिया उनके पास भेजी, उनकी भी बड़ी निगाह है तारीख पर। दोनों के पास एक साल तक की किताबें रखी रही और जब इन दोनों से किताबें हमें जांच के होने के बाद वापस मिली, फिर हमने इसको छापने का इरादा किया। लेकिन चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि तीन बातें कही जाती हैं, कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं सही है। एक बात तो ये कही जाती है कि लिखने वाले यानी मुसन्निफ और राइटर के लिए उसके लिए तीन चीजें हैं, एक तो कारून का खजाना हो, दूसरे सब्र अय्यूब हो और तीसरे उम्र नूह होना चाहिए। क्योंकि लिखने के लिए एक राइटर के लिए, एक मुसन्निफ के लिए उम्र नूह दरकार होती है और एक लंबी उम्र काम के लिए होना चाहिए। क्योंकि आज एक सफा लिखा, कल को कोई काम दरपेश हुआ, ये नहीं लिखा आगे बढ़ गया। दूसरा ये कि हजरत अय्यूब का सब्र वो मिसाली सब्र है। बहुत सी चीजें इंसान सोचता है लेकिन सोचते सोचते वो लिख नहीं पाता है, दूसरे रोज वो मजमून जहन में आता है फिर उसको लिखता है। और तीसरी बात, खजाने कारून की ये किताबों की इशाअत पर, किताबों की छपाई पर बहुत बड़ा खर्चा आता है। इसलिए ये तीन चीजें ऐसी हैं, अल्लाह ताला जिनको नवाजता है वो इस दरिया को अबूर कर जाते हैं। बहरहाल हमारा ये इलाका फतेहपुर का गंजमुरादाबाद, क्योंकि अब ये इसकी वसी वरीज है, उस वक्त जो एक हल्का में एक मखसूस हल्का था और आसपास के गांव खेड़े सब इसी में लगे हुए थे और हर एक हजरत मौलाना फजले रहमान रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होता था। बहुत से वाकयात तो ऐसे हैं कि फतेहपुर के आसपास गांव के लोगों के वाकयात ये कि हजरत मौलाना के जमाने में इशा और फज्र की नमाज जाकर के उन्हीं के पीछे पढ़ा करते थे। उस वक्त तो जंगल झाड़ी और चोर और डाकुओं का जमाना था, लेकिन मौलाना से अकीदत की बात ये थी, क्योंकि मौलाना इल्म हदीस के साथ साथ इत्तिबाए सुन्नत के बेपनाह पाबंद थे। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कबूलियत की अता की और ऐसे ऐसे किबार उलमा हाजिर हुए। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह वो भी हाजिर हुए और उन्होंने अपना एक सफरनामा लिखा जिसका उन्वान था नैलुल मुराद फी सफर इला मुरादाबाद। 30 सफहात में वो रिसाला उन्होंने छापा था 1352-53 हिजरी में। आज से 50 साल से जायद का अरसा हो गया, वो भी हमने शामिल किया है किताब के अंदर। इस तरह की बहुत सी अहम और मुफीद बातें हैं जो बहरहाल अगर बताने पर आए तो बहुत बड़ा वक्त चाहिए उसके लिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज की ये तकरीब जो है एक नई तकरीब है, नया उन्वान है आपके लिए, नया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्मी चीजें हैं, यही हमारे और आपके लिए सबसे ज्यादा मुफीद है। जो चीज देर पा होती है, देर तक रहती है, वही हमारे और आपके लिए नाफे बनती है।